Hello students. Today we are going to learn about the parts of speech. You know that there are 8 parts of speech in English language. So we are going to start with the parts of speech. Words are divided into different kinds of classes. अभी जो words है उनके अलग अलग classes है, जिसमें कि उसमें कोई noun होता है, कोई pronoun होता है, कोई एडजेक्टिव होता है तो कोई एडवर्ब होता है. सो वो हम अभी देखने वाले हैं. नाउ सी द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दैट इट इज noun. You know that noun is what? Noun is the name of person, place, animal and things. These are the names of noun. These are the names which are given for the noun. For example, again we can say example here. He is from Coimbatore. Coimbatore is a name of place. Coimbatore is a name of place. Gold is a precious metal. Gold is a name of thing. Means we can say that precious metal. So that is why. Now see, Shakespeare is an English poet. Now Shakespeare is a name of a writer, a poet. Rani is a fine dancer. Rani is the name of a person, means a female person. We can say the girl. So these are the names of different person, um, place and things also. Now there are different kinds of nouns are there. मतलब जिस तरह के जो नाउन होते हैं तो नाउन में भी क्या है, तो अलग अलग तरह के प्रकार है. उसमें अलग अलग तरह के क्या है, तो प्रकार हैं. तो जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन में कौन से हो सकते हैं, आप देखने की कोशिश करो, ऐड करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो. सो नाउ सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन इन दैट द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. Proper noun in the sense a name which is given to a particular person or special person. We can understand that is the name of proper noun. That is the name of proper noun that we can understand easily. Now see, special name of a particular person, place, thing or event, that is called proper noun. Then in that some examples are there: Raja, Niveda, Dhoni, Shivaji, Nick. These are the names of person. These are the names of person. Then LG fridge, Apple laptop, Parker pen. These are the names of things. Then next one, Coimbatore, Singapore, Australia, Delhi. These are the names of places. Then next one, Olympic Games, round table conference. These are the events. These are the name which are given to the events. So events को भी नाम दिया जाता है. That we should keep in our mind. Now see the next one. Delhi is the capital of India. Here Delhi is a place in India, and that name has been given to a place. Then Vijay is my best friend. Vijay is a nickname of his friend. So it is called again a noun. Ambedkar was a true leader. Ambedkar was a true leader. Antarctica is the coldest continent. Antarctica क्या है, तो एक coldest continent है. तो these are the examples of noun. So I hope you have understood the examples of proper noun. Now see, the second one is common noun. The noun which we use commonly, for example, boy, girl, man, woman. So we can do one thing, we can call, if we don't know the names of any particular person, so we can call him like a man. If there are many students, there are many boys and I don't know the name of that boy, so I can tell him, tell to another one, that boy is very nice. That boy, it means it shows that common, it is common noun. In general I can use it. So common noun. Then next one, ordinary name of a person,
प्लेस, एनिमल, थिंग और इवेंट। जैसे कि अभी कॉमन नाउन में हम सिटी को बोल सकते हैं। सिटी तो हम किसी भी शहर को बोल सकते हैं, बट अमरावती बोल सकते हैं क्या? नहीं। सो इट शुड बी Amravati should be a proper noun and city should be a common noun. I hope you have understood it, the common noun. Then the next one is in the examples of common noun: girl, boy, father, mother, scientist. These are the examples of common noun. Now see next one: hospital, temple, town, park. These are the common nouns of places. अभी ये भी common noun ही है, but किसके? ये places के दिए गए हैं. Then after that again bird, lion, elephant, hen, rabbit. तो ये भी क्या है? एनिमल और बर्ड्स के नेम्स हैं. मतलब इसमें अभी देखो ये कॉमन भी हो सकते हैं और प्रॉपर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एनिमल्स बहुत सारे दिए हैं अलग अलग और एक एक ही है तो उसे हम बोलेंगे एलिफेंट एक, तो वो हो जाएगा वहाँ पर प्रॉपर नाउन. बट अगर ऐसे बहुत सारे एलिफेंट्स है और उसमें मतलब अफ्रीकन एलिफेंट है, ब्राज़ीलियन एलिफेंट है, वाइट एलिफेंट है, तो ये हो जाएगा वहाँ पर प्रॉपर नाउन और एलिफेंट बन जाएगा कॉमन नाउन. देन आफ्टर दैट क्रिकेट मैच. अभी क्रिकेट मैच ये इवेंट है, कार्टून शो ये भी एक इवेंट है, बट ये कैसा है? कॉमन है. बट अगर हम ऐसा बोलते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन. तो क्रिकेट मैच कैसे हो गया? कॉमन नाउन. बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच प्रॉपर नाउन. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट मैच प्रॉपर नाउन. सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. बुक, बैग, हाउस, पेन, शिप, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये है कॉमन नाउन, क्योंकि हम बुक किसी को भी बोल सकते हैं. मतलब किसी को भी मतलब कोई भी एक बुक होती है तो उसको हम बोलेंगे बुक. बट अगर हिस्ट्री बुक, प्रॉपर नाउन. हिस्ट्री बुक क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन. देन बैग. बैग क्या है? तो कॉमन नाउन. किसी भी बैग को हम बैग बोलते हैं. बट जैसे ही हम बोलते हैं माई बैग तो बन जाएगा प्रॉपर नाउन. रेड बैग प्रॉपर नाउन. ब्लैक बैग प्रॉपर नाउन. स्कूल बैग प्रॉपर नाउन. So I hope you are able to understand the differences in between that. What are the changes in between that? Now, example, the tree is very big. The tree is very big. Tree तो है, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर क्या बोला है? The tree is very big. तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, बट ट्री क्या है? तो कॉमन नाउन है. द बॉय इज़ प्लेइंग विथ टॉयज. यहाँ पर द बॉय मतलब हम दिखा रहे हैं तो प्रॉपर नाउन, और नहीं दिखा रहे हैं मतलब डायरेक्टली जनरली सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन. दैट वी हैव टू कीप इट ऑलवेज इन आवर माइंड. द गर्ल्स आर वॉचिंग टीवी, कॉमन नाउन. दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, कॉमन नाउन. तो इस तरह से आपको उसे याद रखना है. देन नेक्स्ट वन, abstract noun. अभी now see quality that person or things have cannot been seen, heard, touched or taste. abstract noun एक इस तरह का नाउन होता है जिसे ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, ना ही हम उसको सुन सकते हैं, ना ही हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. मीन्स एक तरह का ये ऐसे नाउन है जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट, वी कैन रियलाइज इट. जैसे कि एयर हवा होती है ना हमारे आसपास, क्या हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो क्या एयर हमारे साथ में बात करती है क्या? नहीं. तो ये बन जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसी तरह से कॉन्फिडेंस, anger, hunger, these are the another examples of abstract noun, and we have to always keep it in our mind that these are the abstract nouns. Now see, next one is jog, that the action if being involved in running. अभी देखिए जैसे कि कुछ एक्शन को भी एक्शन वर्ड्स को भी हम एज अ नाउन बोल के यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग,
अभी अगर मैं रनिंग को सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ करता हूँ तो रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, तो ये बन जाएगा यहाँ पर नाउन। अगर मैं वर्ब के बाद में यूज़ करता हूँ तो भी ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। जैसे कि आई लाइक रनिंग, सो आई गो एवरी डे इन द मॉर्निंग फॉर रनिंग, फिर से लास्ट में, तो ये बन जाएगा नाउन। उसी तरह से सिंगिंग, सिंगिंग इज़ माई पैशन, आई लाइक सिंगिंग, सिंगिंग यहाँ पर क्या पर है, कहाँ पर है, लास्ट में है, तो ये एक्शन वर्ड भी है जो एक नाउन का भी काम करते हैं। सो वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड। देन नेक्स्ट वन, पावर्टी। पावर्टी मतलब स्टेट, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, मतलब गरीबी बोलते हैं ना अपन, पावर्टी, रीच, तो ये भी क्या है, एक नाउन ही है। देन मैनहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग मैच्योर्ड, मतलब एक इंसान बनने की प्रोसेस में जब हम बोलते हैं ना कि वो बहुत ही मैच्योर्ड इंसान है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। मैनहुड, चाइल्डहुड, सो दैट। वाइजनेस मतलब उसे हम बोलते हैं कि उसका वो बहुत अच्छे से बात करता है, अच्छे से बिहेव करता है, तो उसके अंदर क्या है, वाइजनेस है। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, जैसे कि उसमें एग्जांपल देखेंगे, हाँ मतलब उसमें एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं कि वाइज, ऑनेस्ट, अब ये क्या है, तो ये भी हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी को भी एज अ नाउन बोल के हम यूज़ कर सकते हैं। ऑनेस्ट, और उसे ऑनेस्टी ऑनेस्टी कर दिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब ये क्या है, वाइजनेस है, क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज। कॉरलिंग, कभी कभी हम झगड़ा करते हैं तो वो उसमें भी द एक्शन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन कॉरल, अभी एक्शन कौन सी इन्वॉल्व होती है कॉरलिंग में, तो बहुत सारे एक्शंस होती है। ब्रेवरी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द abstract noun. And now next one is material noun. Material noun means the raw material, raw elements or objects in nature, मतलब जिसे काउंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि शुगर, शुगर हो गया, उसे काउंट करने के लिए हमें केजी का यूनिट चाहिए। मिल्क हो गया, सैंड हो गया, डस्ट हो गई, तो ये सारे के सारे क्या है, तो मटेरियल नाउन्स हैं। आफ्टर दैट see, in that some examples have been given: iron, gold, stones, brass, platinum, mercury, uranium, diamond. So ये सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे क्या है, तो material noun. Then example: emerald is available here, ruby is costlier, iron is very useful metal, the house is built of stones. तो stones भी क्या बन गया यहाँ पर, तो मटेरियल नाउन बन जाएगा। देन द नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन। अभी कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है, जहाँ पर कुछ ना कुछ कलेक्शन आपको दिखता है, सो वो दिखेगा कलेक्टिव नाउन, वो आएगा कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि हम फैमिली एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, तो फैमिली, तो हमारी फैमिली जो होती है, तो फैमिली आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में, और फैमिली में का एक एक पर्सन आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। जैसे कि एक फैमिली में सिराज नाम का एक पर्सन रहता है, स्टूडेंट रहता है, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। बट फैमिली कैसे रहेगा, कलेक्टिव नाउन। सो इन डिटेल्स यू कैन सी, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। सिमिलर पर्सन, जैसे कि टीम, टीम में सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर है, अगर क्रिकेट की टीम है, तो फुटबॉल की टीम है तो सारे के सारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। देन नेक्स्ट वन, सम एग्जांपल्स वी विल टेक। अ हर्ड ऑफ कैटल, मतलब जो भेड़ बकरियाँ होती है ना, मतलब उसे हम गाय बोलते हैं, तो वो सारे के सारे क्या रहेंगे, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन रहेंगे। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, मतलब जो सोल्जर्स है उनकी उनकी जो एक रेजिमेंट होती है, या तो फिर कुछ सोल्जर्स एक साथ जब जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अ ट्रूप। अ बंच ऑफ कीज, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास में क्या होती है, कीज होती है, हमारे पास में कीज होती है, और हम क्या करते हैं उसको, उस कीज को एक इसमें लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारी कीज होती है, तो उसे हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज, मतलब अ कलेक्टिव नाउन, ये बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर,
ये भी कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लोक ऑफ शिप, बकरियों का झुंड, तो उसे भी हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। देन नेक्स्ट वन एग्जाम्पल it has been given here, so we can see the examples also. Now see, a committee of 5 was appointed, मतलब 5 लोगों की कमिटी अपॉइंट की गई थी। द कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, कमिटी तो ये बन जाएगा कॉमन कलेक्टिव नाउन। कौन सा बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन। आई सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होते हैं वो एक बंच में होते हैं, इसलिए उसे भी कंसिडर करते हैं एज अ कलेक्टिव नाउन। देन द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you all have understood noun it very well. Now we are going to see about the pronoun. Pronoun is the second part of speech. After noun we have to understand about the pronoun. Now see, what is pronoun? Pronoun is a word that is used instead of a noun which has already been mentioned or is already known. मतलब अभी प्रनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाम की जगह पर यूज़ करते हैं, नाम के बदले हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे रोहन बोलना है तो फर्स्ट सेंटेंस में मैं ऐसे बोलूँगा, रोहन इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, रोहन स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, रोहन स्टडीज़ हार्ड। बार बार मैं रोहन का यूज़ करने के बजाय मैं क्या करूँगा, तो रोहन के बदले ही का यूज़ करूँगा क्योंकि वो लड़का है, तो ही हो जाएगा यहाँ पर प्रनाउन। देन आफ्टर दैट सम प्रोनाउंस लिस्टेड बिलो, मतलब कुछ प्रोनाउन के एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू, दीज आर द प्रोनाउन। सो वी सी इट, इट इज़ 7, दीज आर द 7 प्रोनाउंस आर देयर, दीज आर कॉल्ड ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन। इसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। इन फैक्ट इट इज़ 8, क्योंकि यू का जो यूज़ है वो सिंगुलर एज वेल एज बीइंग अ प्लूरल ऑल्सो इट इज़ डन, ऐसे किया जाता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल बोल के। सो नेक्स्ट वन, प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव नाउन्स एज वेल एज सब्जेक्टिव नाउन्स। अभी प्रोनाउन का यूज़ हम एज अ एडजेक्टिव नाउन भी कर सकते हैं और एज अ सब्जेक्टिव नाउन भी हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, अभी प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कब आएगा, तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा। कहाँ पर आएगा? सेंटेंस के बिगिनिंग में। तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आई, और प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस के बाद, मतलब सेंटेंस में वर्ब के बाद में आएगा। कहाँ पर आएगा? वर्ब के बाद में। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, तो मी कहाँ पर आया? लास्ट में। प्लीज़ गिव मी यूर नोटबुक, गिव के बाद में मी आया है तो ये बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज सेड दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव नाउन्स एज वेल एज सब्जेक्टिव नाउन्स. So these things you have to keep in your mind. One more example we can take. For example, he. He is very nice student. He is very nice student. I like him. अभी like के बाद में क्या आया? him. She is beautiful girl. She is honest girl. And please give this book to her. तो ये बन जाएगा, her बन जाएगा object. Now see, we have understood the basic things about the pronouns. Now it is very essential to understand what kinds of pronouns are there. Now see, there are different kinds of pronouns are there, so that we are going to have a look on it. Now see, personal pronoun. These pronouns are so called because they refer to 3 persons. अभी इन pronoun को हम पर्सनल प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 3 लोगों से रेफ़र करते हैं। अभी वो कौन से 3 लोग हैं? मतलब एक तो फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? इन द फर्स्ट पर्सन, एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर और द फर्स्ट पर्सन, एग्जाम्पल आई और वी, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। क्योंकि जब हम
सभी लोगों के बारे में अगर कोई अकेला इंसान आंसर दे रहा है, सो वी यूज वी. फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स may say that if someone asks that are you ready to go there, so one can answer, otherwise all can answer at once. So for example, there is a class monitor, he can answer that yes sir, we are ready. So we, it is first person. The person spoken to or the second person, example you. मतलब जिन लोगों को हम डायरेक्टली बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सो यू आर द सेकंड पर्सन, यू आर द लिसनर. आप कौन हो? लिसनर हो, क्योंकि आप फेस टू फेस यहाँ पर बैठे हो, तो मैं यहाँ पर यू का एग्जाम्पल करूँगा. अगर एक इंसान सुन रहा है तो भी यू आएगा, अगर बहुत सारे लोग भी सुन रहे हैं तो भी मैं क्या बोलूँगा? यू ही बोलूँगा. सो इट इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन. And the third person, the person spoken about or the thing or the third person, example she. मतलब दो लोगों में इंटरेक्शन हो रहा है बट किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, सो दैट थर्ड पर्सन बिकम, तो वो इंसान होता है थर्ड पर्सन. जैसे कि डू यू नो दैट महेंद्र सिंह धोनी इज़ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर. अभी क्या मैं ये बात महेंद्र सिंह धोनी को बोल रहा हूँ? नो, I am talking with you. So we are talking about Mahendra Singh Dhoni. So he becomes here third person. In first sentence I have used Mahendra Singh Dhoni, but in next sentence I have to use he or she. For example, one more sentence I can make for you. Mahendra Singh Dhoni is a popular cricketer, as well as he is very nice guy. He helps to many people. Now example of she, see, Priyanka is my friend, she is very interesting, she studies every day. So ये होगा थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं. Now you can take the snap of this, so that will be very interesting for you and very useful for you. First person, second person and third person, these are the charts given here. In that again singular and plural classification has been given. In that object, possessive adjective has also given and objective pronouns are also there. For example, singular I, so I का possessive adjective क्या बन जाएगा? mine. और objective क्या बन जाएगा? me. उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं. आई यूज़ माई मोबाइल. अभी आई यूज़ माई मोबाइल, तो ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन. माई क्या हो जाएगा यहाँ पर? पजेसिव प्रोनाउन. बट माइन हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव. जैसे कि मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का नाम दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली बताऊँगा. अगर कोई मुझे पूछता है कि हुज मोबाइल इज़ दिस, तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ माइन, इट इज़ माइन. और मी कब आएगा? तो वर्ब के बाद में, मतलब एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सी, ही इन्वाइटेड मी, ही कॉल्ड मी, ही इंक्वायर्ड अबाउट मी, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. One more example we can take of you, otherwise yes, we can take example of you. For example, you are the students, you all are the students. Then this is your class, तो your बन जाएगा possessive pronoun. This is yours. अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बोलता हूँ this is yours, so ये बन जाएगा possessive adjective. Then I invite you, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ सी पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट इंडिकेट्स पोजेशन और रिलेशनशिप. वो इस तरह के प्रोनाउन होते हैं जो हमें पोजेशन बताते हैं या तो फिर रिलेशनशिप बताते हैं, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, लाइक दैट. एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, this book is mine. Otherwise you can write down if that book is there in someone's hand, so we can shout it, we can tell that it is mine, it is mine. Otherwise you can say this is mine. So no need to use the book word again. Then reflexive pronoun. Reflexive pronoun means जैसे कि my होता है तो my का myself होता है. तो जनरली हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह के से यूज़ करने हैं वो भी हम बाद में देखने वाले हैं. Reflexive pronouns are used when the action performed by the subject reflects upon it. मतलब सब्जेक्ट ही वहाँ पर क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है,
और वो एक्शन का फ़ायदा या तो जो रिफ्लेक्ट्स होगी वो उसी के माध्यम से होगी। जैसे कि माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आई मेड द केक माई सेल्फ, आई मेड द केक माई सेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं माई सेल्फ नीलेश, माई सेल्फ रोहन। तो जैसे जनरली वहाँ पर माई सेल्फ से हमें अपना नाम नहीं बताना है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज I am. Otherwise, you can simply say that my name is. Like that, we have to tell. Empathetic pronoun are used. Empathetic pronouns are used to emphasize. They are the same as reflexive pronoun. अभी जनरली हम क्या कर सकते हैं, तो उसे सेम ही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, बट उसकी प्लेस चेंज हो जाती है और वो एम्फसाइज करते हैं। शी हर सेल्फ गिव मी दिस एड्रेस, उसी ने खुद मुझे ये एड्रेस दिया है। ही हिमसेल्फ रोट ऑल द क्वेश्चंस, ही हिमसेल्फ wrote all the questions. He himself invited his friends. He himself invited his friend. मतलब वो उसी ने खुद किया है। The clerk blamed the bank manager himself for the embezzlement. क्लर्क ने ब्लेम किया बैंक मैनेजर को हर सेल्फ, खुद के लिए। Now, interrogative pronouns. Interrogative pronouns means we know that whenever we use such kind of pronouns, so question can be being asked. Question is being asked. Who, जैसे कि इसमें आते हैं who, whom, which, whose. Example: whose book is this? Which of these is yours? Your book. So like that. Then demonstrative pronouns. These are used to demonstrate or point out people or thing they stand for. अभी इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को इंडिकेट कर सकते हैं या तो कुछ चीज़ों को हम इंडिकेट कर सकते हैं।